تمام دوستوں کو سلام اور آداب عرض ہے۔ میرا نام علی احمد جان ہے اور آج جو پروگرام کر رہے ہیں ہم خصوصاً کیلاش کے حوالے سے، جو کیلاش قبیلہ ہے ان کے ایشوز کے حوالے سے، ان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گی سید گل کیلاش صاحبہ، جن کا تعلق کیلاش سے ہے، اور کیلاش کمیونٹی کے حوالے سے، کیلاش قبیلے کے حوالے سے یہ پچھلے کئی سالوں سے ان کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، سوشل ورک بھی کر رہی ہیں، ان کے ہر طرح کے لیے کام کر رہی ہیں وہاں پر کیلاش میں۔ اور یہ چترال میوزیم کے انچارج ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کئی پلیٹ فارمز پر، نیشنل انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر یہ کیلاش کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کے ایشوز کے حوالے سے بات کرتی ہیں، ان کے کلچرز کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتی ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ کیلاش کمیونٹی کی سب سے معتبر آواز ہے وہ سید گل کیلاش ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو سید گل کیلاش اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ سید گل، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ کوئی بات نہیں علی، تھینک یو سو مچ اتنا اچھا انٹروڈکشن دینے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنا لمبا چوڑا انٹرو میرا دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ جس موضوع پہ آپ نے مجھے کہا کہ بات کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تھینک یو ونس اگین۔ اچھا جی، حال ہی میں ابھی میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ کیلاش کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلی جو ہم بات کریں گے وہ یہ کہ اریانہ اعظم، جو کہ کچھ سال پہلے بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی، کوک اسٹوڈیو میں ان کا ایک سانگ آیا تھا پارک۔ اریانہ اعظم ان کا نام ہے، اور یہ کرکال گاؤں سے ان کا تعلق ہے، کیلاش قبیلے سے یہ تعلق ہے۔ تو حال ہی میں 2-3 دن پہلے سے یہ خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اریانہ اعظم نے جو ہے نا اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ اب کیلاش قبیلے سے ان کا کوئی مطلب کیلاش قبیلے کی وہ نہیں رہی۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں کیلاش کی لڑکیاں اسلام قبول کیا، اور مطلب یہ ہے کہ دیگر مذہب کی طرف انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا، اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ علی اس میں جو ہے نا ڈیفرنٹ ریزن ہے نا۔ ایک تو جو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب میرے اپنے گھر میں آدھا جو میری فیملی ہے وہ مسلم ہے، اس میں میری چاچو کا تو اس طرح سے انسیڈنٹ ہوا تھا کہ اس کے میرے دادا جی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، تو وہ جا کے مسلمان ہو گئے میرے دادا کو سبق سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی تو یہ کہانی ہے۔ اب میری پھوپھی کی کہانی یہ ہے کہ وہ اس کو کسی مسلم لڑکے سے پیار ہو گیا تھا تو وہ کنورٹ ہو گئے۔ وہ سیم کہانی میری بہن کی بھی ہے، اس کو بھی کسی مسلمان لڑکے سے لائک وہ اس کو پسند کرتی تھی تو وہ کنورٹ ہو گئی۔ تو زیادہ تر جو وجوہات ہے وہ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں مطلب لائک یہ پیار محبت کے چکر میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی، ہم اکثر جب مجھ سے بھی بہت سارے میڈیا میں سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ فورس کنورژن ہے۔ فورس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم نظر آنے والی فورس ہوتا ہے نا، جس طرح ڈنڈے سے یا کسی کو ڈرا کے دمکا کے کہ آپ نے کنورٹ ہونا ہے، اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ تو جہاں تک آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی پڑھتے آئے ہیں، جو جس طرح اسکولوں سے ہماری اسکولوں میں ہماری ٹیچنگز ہوتی ہے، جس طرح سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جس طرح سے ہمیں ریلیجن کو سکھایا جاتا ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد کہیں نہ کہیں حد تک ہمارے سلیبس بھی اس بات کا جو ہے اس چیز کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اب یہ ہمارے اپنے سب سے زیادہ جو اس میں قصور ہے ہمارے بچوں کا جو ہے وہ دین چھوڑنے کا جو سب سے زیادہ قصور ہے وہ ہماری اپنی کمیونٹی کی ہے۔ کیونکہ ہماری اپنی کمیونٹی میں لوگ جو ہے انکرج نہیں کرتے، لوگ آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ کی کلچر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ جس کلچر سے بلونگ کرتے ہیں آپ اس کو اون کریں، اس پر فخر کریں۔ ایون مجھے خود نہیں پتا تھا میرا کلچر کیا ہے اور کس طرح سے کس ڈائریکشن میں ہے۔ جب میں یونیورسٹی میں گئی، جب میں نے ریسرچ کیا، اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اچھا ہمارے کلچر کی یہ ویلیوز ہے، اس طرح کی چیزیں کلچر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ سوشل پریشر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک پہلے کیلاش ڈسکور نہیں تھا علی، تو سوری میری بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ پہلے کیلاش ڈسکور نہیں تھا، اب کیلاش ڈسکور ہو رہا ہے۔ تو اس میں میڈیا کا پریشر بھی ہے، سوشل پریشر ہے، انوائرمنٹل پریشر ہے، بہت سارا پریشر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک 4000 کی کمیونٹی ایک ایسے ویلیز میں رہ رہے ہیں جہاں پہ 10,000 جو ہے ہمارے مسلم کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اور اس 4000 ایک لائیو میوزیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے یونیک کلچر جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ابھی بھی وہ چل رہا ہے،
तो उसमें जो है लोगों का आना और लोगों का वहाँ पे जिस तरह से टूरिज्म का जो अभी पिछले 2-3 सालों में वहाँ पे जो जिस तरह से रुझान रही है, जिस तरह से लोगों का वहाँ पे आना जाना रहा है, तो ये चीज बड़ा इम्पैक्ट करता है, बड़ा असर छोड़ता है। मुझे याद है हम बचपन में जो है रात को हमारे एक रस्म होता था जो आजकल होता ही नहीं है, तो ये हम रट नट उसको कहते थे। रात को हम जाते थे डांस करके आराम से, सुबह स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद किसी दरख्त के नीचे आराम से सो जाते थे। अब ये चीजें नहीं है वहां पे। तो इस चीज को, इस प्रेशर को देखा देखी जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, जो कैलाश है, वो कहीं से आइसोलेशन की तरफ जा रही है। बहुत सारे लड़कों को मैंने, अभी न्यू जनरेशन को मैंने देखा है कि कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन किसी फेस्टिवल में हिस्सा ले, कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन जो है वो किसी स्टेज पे जाके परफॉर्म करे या कोई बात करे, तो वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, और टीनेजर्स में ये चीज बहुत दिखाई देती है। तो ये भी एक प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है, अब जब इस तरह के प्रेशर टीनेजर्स पे होंगे, अब मेरे ऊपर अगर कोई कहेगा कि तुम क्यों बोलती हो मीडिया में, या फिर तुम जो है तुम घर पे बैठो, तुम कहीं ना जाओ, तो जाहिर सी बात है जब मेरे पास ऑप्शन से खत्म हो जाएंगे तो मैं तो कन्वर्ट होंगी ना। मैं कहूंगी कि चलो, मेरे आजाद रहने का क्या फायदा, इस कल्चर का क्या फायदा जिसको मैं प्रॉपरली कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ये भी बहुत सारे रीजंस हैं जो जो अभी जो है नजर नहीं आ रहे। ये बहुत बहुत हाँ लाइक ये सिचुएशन बहुत बहुत खतरनाक है जो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आपके कबीले के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि अब तादाद भी बहुत कम होती जा रही है, अब मेरे ख्याल से 4,000 लोग रह गए, इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी पिछले साल में कैलाश आया था, वहां मैं स्कूलों से, मैं बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो मुझे ये बात पता चली कि वहां पर मतलब एक जमाने में फोर्स कन्वर्जन थी, अब वो फोर्स कन्वर्जन का मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि वहां पे लोगों को, उनको अपना अपना मजहब, अपना अकीदे के हवाले से नहीं पढ़ाया जाता, उनको इस्लामियात पढ़ाया जाता है। और उस दौरान स्कूल में जब उनको अपने अकायद के हवाले से नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चों में एहसास कमतरी जो पैदा होती है, वहां लोगों का ये कहना था। इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, ये बहुत सच बात है अली। मैं इस बात पे एग्री करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ी हूँ। मेरा खुद एजुकेशन इस तरह से हुआ है। तो लाइक आप मैंने बताया ना आपको, जब मैं स्कूल में थी उस तरह से मुझे मेरे कल्चर का नहीं पता था। आगे से कोई क्वेश्चन करता था कि तुम बताओ कि तुम्हारा कल्चर क्या कहता है इस चीज के बारे में, तो हमें गुस्सा आ जाता था, हम हाइपर हो जाते थे क्योंकि हमें पता नहीं था उस चीज का। तो ये जो हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस आता है, फिर आप जब दूसरी चीजें ज्यादा पढ़ते हो तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा आता है। तो आपको लगता है कि अच्छा जो हो रहा है ये ही सही है, जो कह रहे हैं ये लोग ठीक है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि शायद कुछ है ही नहीं, तो कैसे पता होगा। तो ये चीजें काफी, मैं आपके बात के साथ 100% एग्री करती हूँ, ये वाकई में है। बिल्कुल, क्योंकि एक स्कूल में मैं गया, वहां जाके एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या लगता है, तो उस बच्चे हम्म। ने मुझे जवाब दिया था कि मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इस्लामियात लगता है। ठीक जी। है, तो वहां पे अगर एक बच्चे के अकायद मुख्तलिफ हैं, क्या उसको इस्लामियात पढ़ाना, जाहिर है मेरा ख्याल है ये जरूरी नहीं है उसके उसको अपना अकीदा पढ़ाया जाए, अपने जो वहाँ के नॉर्म्स है, वहाँ के कल्चर है, वहाँ के रिचुअल्स है, उस हवाले से पढ़ाया जाए। तो आप भी जरा बताइएगा इस बारे में। अली, इसमें असल में पहली बात तो ये कि एक तो इस्लामियत लाजमी है ना, जिसको हमें लाजमी पढ़ना होता है, सारे स्कूलों में है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमारे जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी पाकिस्तान में रह रहे हैं वो सब पढ़ते हैं, लाइक हिंदू, क्रिश्चियन, जितने भी है, सिख, जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक तो लाजमी है, उसको तो हमने लाजमी पढ़ना है क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, उसको पढ़े बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप, क्योंकि हमारी कम्युनिटी से अभी तक ऐसे कोई टीचर हाई लेवल पे या मिडिल लेवल पे अभी तो है, इससे पहले नहीं थे। तो जब नहीं थे तो वहां पे जाहिर सी बात है, अब जब टीचर भी हमारे कम्युनिटी से नहीं है, आप जब स्कूल जाते हो तो वहां पे टीचर भी दूसरे कम्युनिटी से होते हैं, तो उन टीचर्स को जाहिर सी बात है वो तो फिर वही पढ़ाएंगे। असल में हमने इस चीज की डिमांड शुरू में ही, अगर इसकी डिमांड हम करते, अगर हम खुद इस पे बोलते, तो अभी तक इस पे कोई ना कोई अमल हो जाता। ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। असल में बात ये होता है कि आपको अपने खुद बात करनी होती है, खुद आपने बोलना होता है कि जाके मुझे ये करना है। ठीक है, तो मैं जब कॉलेज में भी थी तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कहा था कि बेटा तुम कोई भी सब्जेक्ट रख लो, लेकिन मुसीबत ये कि हमारे पास टीचर्स नहीं है। तो बाज दफा हमारे पास ये भी मजबूरियां आती है कि हमारे पास टीचर्स नहीं होते उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो मेजोरिटी जो होता है वो जो पढ़ता है फिर वही सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है, मजबूरी में भी, ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है। वो फोर्स भी नहीं होता क्योंकि आपका कोर्स का हिस्सा होता है, आप मजबूरी में उसको पढ़ लेते हो। तो ये मेरे खुद जब मैं थर्ड ईयर में थी तो मैं इस्लामियात
ट्यूशन करती थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी वो सारा फिक्का और वो सारी चीजें थी उसमें। लेकिन लकीली मेरा ये था कि मैं जिस फैमिली में रहती थी वो फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो मेरे हमेशा इस्लामियात में अच्छे मार्क्स आए क्योंकि मैं उसमें बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी, मुझे आता नहीं था इसलिए। अच्छा, तो हाँ, इसमें अहम बात यह है कि इस्लामियात का पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी आप बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो जो पढ़ाने वाला ऐसा हो कि वो आपको इस तरह पढ़ाए कि भाई एक रिलीजन है, उसमें उसके ये अकायद हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई सिर्फ एक खुदा के मानने वाले दुरुस्त हैं, बाकी दिगर जो चीजों पे बिलीफ रखते हैं वो गलत है, तो फिर लोग वहां से मेरे ख्याल से बच्चे गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और ये बिल्कुल तमाम। अली, आई 100% एग्री विथ यू। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मैंने बुद्धिज्म भी पढ़ी है, मेरे पास गीता, महाभारत, रामायण तीनों किताबें पढ़ी, मैंने तीनों को पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रिलीजन पढ़ना। मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे इस्लाम से रिलेटेड जितने भी किताबें थे मैंने सब पढ़ी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि किसी मजहब के बारे में आप नॉलेज गेन करना। लेकिन इसका ये मतलब हर किसी नहीं है आप उसको इम्पोज करके पढ़ाते हो। टीच करो, प्रीच ना करो। तो ये टीचिंग से ज्यादा प्रीचिंग की तरफ जब तवज्जो होता है, इसमें असल में कसूर उनका भी नहीं होता, क्योंकि अभी तक जितने भी टीचर्स हमने देखे हैं वो उस तरह से ट्रेन नहीं होते। उनको असल में ट्रेन की जरूरत होती है, उनकी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, क्लासरूम में बंदा बैठे उनको देखे कि वो टीच कैसे करते हैं। तो उनको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपरली कि क्लासरूम में आप एक क्लासरूम में जा रहे हैं, वहां पे आपको फर्क नहीं होना चाहिए, आपको लगे कि वहां पे सारे खुदा के बंदे बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स है, इक्वल है, सबके साथ आपने इक्वली ट्रीट करना है। ये टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए इस बात पे, लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं होती। हमारे किसी भी टीचर को इस तरह से ट्रेनिंग आज तक तो किसी ने भी नहीं दी कि वो इतना लिबरल हो कि क्लास में जो स्कूल लेवल के हैं क्लास में जाके वो बच्चों को उस तरह से लिबरली वो ट्रीट करे या इक्वली वो ट्रीट करे। तो ये चीजें काफी इश्यूज है। आप इस पे तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। सही, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही सैयदुल के प्रीच ना करें, टीच करें। लेकिन यहाँ टीच एक करे, और अहम बिल्कुल। बात, हाँ, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि चाहे वो पाकिस्तान में हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो कैलाश हो, तो सिर्फ लड़कियां ही इस्लाम क्यों कबूल करती हैं मुतासिर हो के अपनी मर्जी से, लड़के या फिर और कोई लोग क्यों नहीं करते? अली, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मेरे दिल में भी हमेशा आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस सवाल को एक्सप्लेन कैसे करूं। ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमेशा लड़की मुसलमान होकर शादी क्यों करती है, उसको कोई बेटी क्यों नहीं बनाता उसके सर पे हाथ रखकर, या उसको कोई बहन क्यों नहीं बनाता सर पे हाथ रखकर। तो लाइक समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो मेरी तो मेरे घर में तो इक्वल है, क्योंकि मेरे दो चाचा मुसलमान है, दो फूफियां मुसलमान है, मेरी बहन मुसलमान है। तो मुझे नहीं लगता, शायद ये कि लड़कियों को ज्यादा वो पता नहीं, या लड़कियां ज्यादा इस चीज से इफेक्ट होते हैं, उनको ज्यादा शायद तो होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं दूसरी मजहब की तरफ। आई डोंट नो, मुझे अभी तक ये लॉजिक नहीं समझ आई। अच्छा, तो जी। अभी चूंकि आपकी जो रिचुअल्स हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जहाँ हमारे बहुत सारे देखने वाले ऐसे हैं जो कैलाश कबीले के रिचुअल से वाकिफ नहीं है। चित्राल में एक दोस्त ने कहा था कि भाई चित्राल में सिर्फ दो लोगों की वजह से चित्राल और पाकिस्तान की तरफ टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट, एक तो पोलो और दूसरा कैलाश। तो जरा सा आप आप अपना जो कल्चर है ना कैलाश कबीले के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल अली, थैंक यू सो मच। कैलाश का जो है ये एक यूनिक कल्चर है, जो कि दुनिया में अभी आहिस्ता आहिस्ता कल्चर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और लोग मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, और उस तरह से चीजें जो हैं वो पहले की तरह नहीं रहते। लेकिन कैलाश वाहिद ऐसा कल्चर है जो अभी भी सरवाइव करते हैं एज इट इज, जैसे पहले था अब भी वैसा ही है। इनकी साल में 4 फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें स्प्रिंग हो गया, या स्प्रिंग फेस्टिवल जो मई में, डेट में बताता चलो, 13 से लेकर 17 तक तीनों वैलीज में जोशी फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें हमारी लाइक फेस्टिविटीज में हम रिचुअल्स करते हैं। वो हमारा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें हमारे रिचुअल्स होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्योरिफिकेशन और ये सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगस्त में हम 22 अगस्त को एक समर फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि जिसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहा जाता है। कैलाश एक बहुत मजेदार किस्म की बात मैं आपको बता दूं, कैलाश के लोग
फसल के लिए वो बीज निकालते हुए भी रिचुअल करते हैं, फसल पकता है तो भी उनका रिचुअल होता है, फसल काटते हुए भी उनका रिचुअल होता है, उसको संभालते हुए भी रिचुअल करते हैं। तो ये बहुत सारे फेस्टिविटीज है, हर चीज में वो फेस्टिविटीज उनकी आती है। इसके बाद हमारी प्रू फेस्टिवल जो बिरीर में मनाया जाता है मिड अक्टूबर में, जिसमें जो वॉलनट हो गया, ग्रेप्स हो गए, वो सारी चीजें जब वो कलेक्ट करते हैं उसके बाद उनके एंड में, वाइन मेकिंग के एंड में एक प्रू फेस्टिवल मनाया जाता है मिड अक्टूबर में। फिर दिसंबर में हमारा फेस्टिवल, दिसंबर वाला फेस्टिवल बहुत ज्यादा अहम है, जिसमें 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक हम फेस्टिवल करते हैं, जिसमें हमारे सारे जो रिचुअल्स है, प्योरिफिकेशंस हैं, कुर्बानियां हैं, सारे इस फेस्टिवल में हमारे होते हैं। अच्छा, जितने भी लोग कैलाश की तरफ जाते हैं उनके पास वो दो गलत फहमियों के साथ जाते हैं। जितने लोगों को, जितने टूरिस्ट को मैंने देखा है, तो एक गलत फहमी होती है कि कैलाश में शराब मिलती है, दूसरी गलत फहमी होती है कि कैलाश में लड़कियां मिलती हैं। तो इस बारे में एग्जैक्टली कुछ बताइए आप। एग्जैक्टली अली, असल में मुझे नहीं समझ आती कि इस बात को मैं कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि मैं खुद मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात करती हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म की भी जब मैं उसकी स्क्रीनिंग कर रही थी इस्लामाबाद में, पेशावर में, फिर लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पर, तो मुझे नहीं समझ आती है कि इनकी ये गलत फहमी कहाँ से आती है। एक तो ये कि हमारा सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है, समझ में नहीं आता है लोग कैसे अजीब गरीब चीजें यूट्यूब पे शेयर करते हैं या फिर फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो उससे दूसरे लोग जो देखते हैं वो रिसर्च नहीं करते। हम, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम सब ऐसे हैं, हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, किसी से कोई बात सुन लिया, उसको एज्यूम कर लिया, उसी पे यकीन कर लिया और उठ के उस जगह पर चले गए, और कोई समझ नहीं आता है कि एक कल्चर को आप, वो कल्चर वहां पे है तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करें, आप देखने जाते तो रिस्पेक्ट भी करें। तो रिस्पेक्ट करना नहीं आता, कोई भी उठ के आ जाता है और उसको फिर वहां पे आके लड़की के साथ तस्वीरें भी बनानी होती है। उनको लगता है जैसे हम उनकी प्रॉपर्टी है वहां पे। ठीक है, वो उधर पता नहीं एंट्री पॉइंट पे उनसे कोई एक दो टिकट वो ले लेते हैं, उसके बाद वो उधर आके उनको लगता है कि हमने टिकट लिया है तो हम पूरे कैलाश की तस्वीरें बना सकते हैं हम, या इस तरह से ऐसा नहीं है। ये असल में अभी तो देखें, अभी तो हमारे मुख्तलिफ जगहों पर ब्रशर्स भी देते हैं, लोग प्रोवाइड करते हैं उनको, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर चित्राल में भी, और उधर हमारी जो लेवीज के सिपाही है दुवाश में, वो भी प्रोवाइड करते हैं ये चीजें। तो ये चीजें अभी करते हैं लोग, लेकिन हम पढ़ते नहीं है अली। मुसीबत ये कि हम पढ़ते नहीं है। कोई 2 लाइन की भी कोई चीज हो ना, उसको हम नहीं पढ़ते, पढ़ते हुए हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते, फिर वहां पे जो है, फिर जाहिर सी बात है, फिर तो आपको तो पता है, फिर वहां पे भी लोगों का दिमाग खराब है, कभी कभार बदनजरी भी हो जाती है इस चीज पर। तो ये बहुत 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 गलत कंसेप्ट है लोगों का, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कुछ तो मैंने खुद भी देखा है। जिस तरह मैं जब भी आया हूँ तो कैलाश के लोग हमेशा मेहमान नवाज हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल तहजीब। बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाते हुए मैंने लोगों को देखा है। तो इसी तरह ही मैं है। पूरे बिल्कुल चित्राल के लोग कैसे हैं अली, आप देखें ना, सारा चित्राल जो है मेहमान नवाज है। आप चित्राल में भी आए, देखें वहां के लोग कितना लोगों की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे पूरे चित्राल ऐसा है, कदर करने वाले लोग हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे, ये 10 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ये कि लोग वहां से जो है ना, समझते नहीं। आई डोंट नो क्या मसला है लोगों का। अच्छा, क्योंकि आपके गांव की तरफ, आपके जो कैलाश की तरफ हर तरह के लोग आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट साल हर साल आते हैं। तो जरा ये बताइएगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनके रवैयों में क्या फर्क है। अली, असल में ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आते हैं तो वो पढ़ के आते हैं। उनको पता है कि कल्चर की वैल्यू क्या है। वो टूरिस्ट है, वो टूरिज्म के नियत से आते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये ना, एक लफंगे होते हैं, ठीक है, वो उठ के चले जाते हैं, उनको गन करना होता है, उनको मस्ती करनी होती है। वो टूरिज्म नहीं है। वो ना तो टूरिस्ट उनको आप कह सकते हैं, ना वो टूरिज्म की वो बेकदरी करते हैं। एक होता है टूरिस्ट, होते हैं जो टूर की नियत से आते हैं, जो एक कल्चर को देखने के लिए आते हैं, उसको स्टडी करने के लिए आते हैं। तो जो इंटरनेशनल हमारे पास आते हैं, उनका यही होता है, वो पढ़ के आते हैं। आते भी हैं तो वो अगर किसी के साथ बैठते भी है, बात भी करते हैं, तो सबसे पहले वो उनसे परमिशन लेते हैं। किसी के घर जाते हुए परमिशन लेते हैं, बात करते हुए परमिशन लेते हैं, फोटो खींचते हुए परमिशन लेते हैं। तो बड़ा बहुत
ان کا جو ہے نا وہ ایک سافٹ جو ان کی جو وہ ہوتی ہے نا سافٹ امیج وہ اپنا چھوڑ کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ان کی بہت قدر ہے. انٹرنیشنل ٹورزم کو بہت لوگ ویلکم کرتے ہیں, ان کی قدر بھی کرتے ہیں. لیکن ڈومیسٹک بھی ہمارا کچھ لوگ برے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے, آپ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پر ہیں. کچھ لوگ پڑھ کے آتے ہیں تو وہ بھی کلچر کو سمجھتے ہیں. جیسے آپ آئے تھے, آپ کو میں نے بھی دیکھا تھا, آپ کیلاش آئے تھے, آپ سمجھنے کے لیے آئے تھے نا. اس طرح آپ کی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں ڈومیسٹک میں جو کلچر کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں, اس چیز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. مجھے ہزاروں لوگ میسج کرتے ہیں کہ یار ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں, ہمیں کیلاش میں آ کے کیا کرنا ہے, کون سے رولز فالو کرنا ہے. تو ایسے کافی لوگ ہیں جو مطلب سمجھ کے بھی آنا چاہتے ہیں. بالکل. آپ کی ایک بات مجھے ابھی یاد آ رہی ہے سید گل, آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں پورے کیلاش کو ایک زو سمجھتے ہیں, جس طرح زو میں جا کے وہ شیر, جانور, ہاتھی کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو کیلاش کو بھی وہی سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ ان کا رویہ یہ ہے, تو اس بارے میں بھی ذرا بتائیے گا پلیز. بالکل علی, اسی طرح ہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کچھ ایک پچھلے سال کی بات ہے, میرے خیال نہیں 2018 کی بات ہے, جب ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس میں ایک لڑکے نے زبردستی کوئی ویڈیو بنا کے پھر اس نے بڑے فخر سے سوشل میڈیا پہ بھی چڑھایا تھا. لیکن اب لکیلی بات یہ نا کہ اب وہاں پہ چیزیں کافی کنٹرول ہے, کیونکہ جس بندے نے یہ کیا تھا اس کو پھر پولیس نے پکڑا بھی تھا, اس کو جیل بھی ہو گیا تھا. تو ابھی جو ہیں چیزیں اس طرح سے, ابھی وہاں پہ جب یہ کنٹرولنگ چیزیں, پہلے وہاں پہ آرمی تھے تو وہ کافی چیزیں جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. تو یہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اکثر میری زمینیں جو ہیں وہ روڈ کے کنارے ہیں, تو میں روڈ کے کنارے اکثر جب میں چلتی ہوتی ہوں تو لوگ گاڑی کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم اتنے دور سے آئے, ہمارے ساتھ تصویر کھینچو. بھائی کیوں آئے ہو اتنے دور سے؟ تو ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اپر دیر سے آئے ہیں. میں نے ان کو کہا بھائی دیکھو بات سنو میری, لوگ امریکہ سے پتہ نہیں کہاں سے ویزا لگوا کے آتے ہیں, تو آپ آئے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمارے مہمان ہیں, گھومے پھیرے چلے جائیں. تو یہ آپ میرے اوپر احسان تو نہ کریں نا کہ آپ اتنے دور سے آئے ہیں. تو میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ آ جائیں. تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو ایسے احسان کرتے ہیں جیسے وہ مطلب ہم کوئی ایسی کوئی جانور ہے, کسی پنجرے میں رہ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے پیمنٹ کر کے آتے ہیں تو ہمارے اوپر احسان کرے کہ ہم نے تو آپ کو خریدا ہے اتنے دور سے آ کے, تو آپ تصویر بناؤ ہمارے ساتھ, بات کرو, گپ شپ مارو. تو یہ بہت بہت غلط کنسپٹ ہے لوگوں کا. صحیح. کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے سوالات بھی آ رہے ہیں سید گل. ابھی جی آغا بیشتی صاحب ہمارے گلگت بلتستان کے ہمارے دوست تھے, ان کا ایک سوال آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے لڑکیوں کی ابھی جو ویڈیوز اور جو باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کی ذرا تفصیلاً بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں. وہ تو علی میں نے بتا بھی دیا, ابھی دوبارہ بتا رہی ہوں. یہی بات ہے کہ کنورژن جو ہے وہ زیادہ تر تو یہی پیار محبت اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کچھ ہمارے سبجیکٹ ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا, جس طرح سے اسکولوں میں ہماری اسٹڈیز ہوتی ہے, جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں, اور اس طرح سوشل پریشر بہت زیادہ ہے, میڈیا کا پریشر بہت زیادہ ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں, ٹورزم ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس چیز کا ایک جو ہے ایک ذریعہ بنتے ہیں. تو دوسری میں نے بتایا ہماری اپنی کمیونٹی کی بھی جو ہیں پرفارمنس زیرو ہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. وہ ینگسٹرز کو موٹیویٹ نہیں کرتے, ان کو انکریج نہیں کرتے, ان کو پڑھاتے نہیں ہیں کلچر کیا ہے, ان کو سکھاتے نہیں ہیں, مطلب ہم خود نہیں سکھاتے, میں بھی ان میں ایک ہوں, شامل ہوں. تو ہماری اپنی بھی کمزوریاں بہت سارے ہیں. تو ہمارے پاس ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے کلاشادور میوزیم, جہاں پہ بچیاں پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ کیلاش سبجیکٹ کو ایز اے کمپلسری سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ لیکن وہاں پہ ایک فیملی سے صرف ایک ہی بچہ یا بچی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ بچیوں کو یا بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا جائے, کلچر کے حوالے سے ان کو سکھایا جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ کیلاش کلچر کیا ہے, اس کو اون کرنا سکھائے ان کو. بس یہ بہت سارے ریزنس ہیں اس میں. آپ کیا بتائیں اس پہ؟ صحیح. تو یہ ہمارے بہت سارے دوست ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, جوائن کیا ہوا ہے, ان کو وہ کیلاش کے بارے میں نہیں جانتے, جو پہلی مرتبہ سن رہے, ان کو کیلاش کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ. کیلاش کے بارے میں علی, اصل میں یہ نا کہ ایک دفعہ CNN کی ایک خاتون مجھ سے ملی تھی, تو لکیلی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پہلی ملاقات ہی مجھ سے ہوئی تھی. تو وہ جب اس نے CNN میں جا کے پھر جب اس نے نیوز چھاپی تو اس نے لکھا کہ اس کی ٹائٹل یہ تھی کہ دا موسٹ ہیپیسٹ پیپل آف دا ورلڈ. تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب سے جو ہے خوش مزاج قوم ہے پوری دنیا میں.
क्योंकि ये तो वही अवाम है जो अपने जब किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हर चीज में इनकी सेलिब्रेशंस होती है, जैसे मैंने बताया फेस्टिवल्स लाइक स्प्रिंग, समर, ऑक्टम, विंटर, जो जो सीजन आते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुश रहते हैं। अब कैलाश के बारे में मैं एक खूबसूरत बात बताना चाहूंगी यहाँ पे। कैलाश के लोग अगर किसी को गालियां भी देनी हो ना तो उसको भी गा के इजहार करते हैं। ठीक है? वो भी गानों में इजहार होता है कि बस ये था और इस तरह से हो गया। तो अगर मोहब्बत का इजहार करना है वो भी गानों में होते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, वो नहीं है, लेकिन पुराने जितने भी हमारे स्प्रिंग फेस्टिवल के सॉन्ग्स हैं वो वही सॉन्ग्स है जो किसी ने फेस्टिवल में आके अपने लवर को प्रपोज किया हुआ है। तो वही गाने अभी हम दोहराते रहते हैं फेस्टिवल्स में। तो ये एक इतना खूबसूरत आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको किसी को गाली देना हो फिर भी आप गा के गाली दे रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस आवाम सामने वाला गुस्से में और फिर डांस करना शुरू करे। एग्जैक्टली यही होता है, यही यही है। लाइक हमारे स्पेशली जो विंटर फेस्टिवल हमारा होता है उसमें लोग जो है ना एक दूसरे की जितने दिल की भड़ास होते हैं वो गानों में निकल देते हैं उनके लिए। जो भी होता है उनके दिल में, जो नफरत जो भी होता है, वो अपने रिचुअल में जाने से पहले सब कुछ अपना दिल साफ करके जाते हैं, फिर वहां पे जाके इकट्ठे प्रे करते हैं। लड़ाई ऐसी कोई चीज नहीं होती कैलाश में। और कैलाश बहुत ही यूनिक और बहुत ही मेहमान नवाज तो पूरा चित्राल है, खैर वो तो सब सबके उसमें है, खुश अखलाकी में भी सब में। लेकिन कैलाश इसी तरह से इसी वजह से इसको यूनिक माना जाता है और उम्मीद करते कि आगे भी ऐसा ही रहे। राइट। अच्छा, एक कुछ हमारे दोस्त भी देखने वाले भी सवालात कर रहे हैं, उनके सवालात भी शामिल करेंगे। उससे पहले मैं हमारे एक दोस्त वो सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी जो डेथ सेरेमनी है वो भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि कोई भी फर्द इंतकाल कर जाता है तो वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं अजमल, वो भी बताइए आप जरा। बिल्कुल अली, असल में ये है कि जाहिर सी बात है डेथ की तो सेलिब्रेशन नहीं होती, वो दुख तो उतना ही होता है जितना सबको होता है। आई नो कि ये कैसे फील होता है क्योंकि मैंने अपना भाई खोया है 2016 में। तो लेकिन ये कि हमारी जो अकीदे हैं वो इतने स्ट्रांग है, उसमें ये कहा जाता है कि वो दुनिया जो बंदा इस दुनिया से जा रहा है वो यहाँ से बेहतर दुनिया जा रहा है। जिस अल्लाह ताला ने दी थी उसकी अमानत थी, उसने वापस ले लिया। तो जब आया था तो हमने खुशी का इजहार किया था, अब जब जा रहे हैं तो भी हम इसको खुशी से हमें अल्लाह ताला के हवाले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जात है, उसने दिया था उसी ने ले लिया। तो हमारा इतना स्ट्रांग बिलीव है कि फिर हमारे जो डेथ होते हैं उसमें भी फिर ये बिलीव सिस्टम इतना वो है कि फिर उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि शुरू से ही ये होता आया है इसी तरह से। सही। जी अच्छा, अभी ये जो कैलाश कबीले के बारे में कहा जाता है कि किसी जमाने में वो चित्राल पे वो हुकूमत करती थी, अब मेरे ख्याल जी से 2-4 हजार से भी कम तादाद रहती है, क्या वजह है? हाँ। इसकी इसकी पहली वजह तो ये है कि जब ये 14-15 सेंचुरी तक यहाँ पे कैलाश एक डोमिनेंट कम्युनिटी था। तो वो यहाँ पे हुकूमत भी उनकी रही है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशियंस आते, रईस आता है, उनके यहाँ से हुकूमत खत्म हो जाती है। वो वैलीज में जाके मतलब किसी केव्स में रहते, क्योंकि इतने डरे होते हैं कि हमें मर देंगे लोग और इस तरह से। तब इनकी जो फैमिलीज थे मेरे ख्याल से कोई 1000 भी नहीं थे जब जब ये यहाँ से चित्राल से माइग्रेट हो गए। जब यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो गए, जो लोग कुछ लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, कुछ जो लोग रह गए थे वो जाके पहाड़ों पे रहने लगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम तक ये 14-15 सेंचुरी तक ये डोमिनेंट फैमिली रहे हैं चित्राल में, डोमिनेंट कम्युनिटी रहे हैं। उसके बाद ये कभी ज्यादा नहीं हुए। फिर वो कोई 1000 के करीब भी नहीं थे, बहुत कम लोग रह गए थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता होके जिस तरह से आबादी बढ़नी चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ती। कैलाश की आबादी बहुत कम हिसाब से, हालांकि बच्चे भी इस तरह नहीं कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं कैलाश में, बच्चे भी सबके अच्छे खासे हैं। 4-5-6 यार के है, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं है। तो लेकिन ये है कि हमारी दोनों तरफ से डिक्रीज हो रही है ना, इस वजह से हम ज्यादा नहीं पढ़ते। लाइक हमारी मौत भी हो जाती, किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो एक बंदा कम हो जाता है, 2 बंदा कम हो जाता है। तो मुसलमान भी हो जाते हैं तो बंदा कम हो जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से डिक्रीजिंग हो रही है, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ते। हालांकि बच्चे सबके पूरे हैं, किसी के 5 है 6 इसी तरह से। लाइक फिर क्या करें। अच्छा, सही। हाँ तो एक और अहम बात यह है कि जो गलतफहमियां हैं, जी कैलाश कबीले में शराब को एक एक मुकद्दस चीज समझी जाती है, आपके रिचुअल्स में उसका इस्तेमाल होता है। जी। तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको भी बताइए जरा ये।
हाय अली, क्या दिल की सवाल पूछी आपने, कसम से मैं कब से वेट कर रही थी कि आप ये सवाल पूछो मुझसे क्योंकि ये लोग इसका इतना, जितना लोगों ने इसका गलत मतलब निकालना था ना, वो निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कैलाश में जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी स्पेशली विंटर फेस्टिवल के जो रिचुअल्स हैं, वो अंगूर की शराब, हर शराब नहीं, सिर्फ जो अंगूर का, जो अंगूर से जो बनता है, जो जिसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं, ग्रेप वाइन के अलावा वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी को प्योरीफाई करते हैं तो उसके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं, ये अंगूर का पानी छिड़कते हैं। अगर किसी को फेस्टिवल पे लेके जाना है तो उसके ऊपर पानी, अंगूर का पानी छिड़कते हैं, क्योंकि उसको प्योरीफाई करते हैं हम इससे। इसकी बैकग्राउंड बताती हूँ। बैकग्राउंड इसकी ये है कि शामनिज्म, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत शामन्स पे बहुत बिलीव था, यहाँ पे भी शामनिज्म को बहुत मानते हैं कैलाश के लोग, उनकी सारा मजहब की बहस शामनिज्म पे है। तो शामन्स की कंपटीशन चल रही थी, तो एक शामन ने कहा कि मैं इस पहाड़ से जाऊंगा और दूसरे पहाड़ से निकल आऊंगा। मैं उस चश्मे पे भी गई थी जिस चश्मे से वो शामन निकला था। तो वो उस पहाड़ से गए, दूसरे चश्मे से वो निकला है, तो उसके हाथ में अंगूर का जो गूशा कहते, क्या कहते, वो था, और गले में उसको अंगूर का बेल था। उस टाइम तक पूरे इंटायर इस हमारे रीजन में अंगूर नहीं था, किसी को पता नहीं था कि अंगूर क्या होता है। तो उस टाइम उसने कहा कि ये मैं जन्नत से लेके आया हूँ, और उसने वो अंगूर का जो गुच्छा उसके हाथ में था वो पहाड़ पे फेंका है, और उससे जो पानी निकला है, उसने कहा आज के बाद कैलाश अंगूर के पानी से और अंगूर से अपने सारे प्योरिफिकेशंस करेंगे। तो तब से लेकर आज तक जो है, ये हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी चीजें हैं, ये हम अंगूर के पानी से ही हम प्योरीफाई करते हैं, उसी से हमारे प्योरिफिकेशंस होते हैं। तो ये सीक्रेट माना जाता है कैलाश में, इसको हम प्योर वाटर कहते हैं अच्छा जी, सही। तो आप ये भी बताइएगा कि ये क्या कैलाश, जो कैलाशी लोग हैं, वो चित्राल के अलावा भी कहीं और भी हैं दुनिया के किसी और मुल्क में? यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है हमारे किसी दोस्त की जानिब से। अली, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि लद्दाख में है, इंडिया में कुछ कम्युनिटीज रहते हैं। मेरे पास लद्दाख के भी कुछ लोग फेसबुक पे ऐड है, लेकिन कुछ कल्चर हमारे सेम है, लेकिन उस तरह से नहीं है। कैलाश अभी तक मुझे नहीं पता चला कि कहीं और भी है या नहीं है, क्योंकि मैं जितना मेरे रिसर्च है, थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ, जो मैं समझती हूँ, जो मेरा लिंक है लोगों के साथ, उस हिसाब से मुझे कहीं पे भी कैलाश की कम्युनिटी का होना जो है अभी तक मुझे नहीं पता चला है। सही। अच्छा, कैलाश में एक चीज जो हमें नजर आती है, खवातीन को आजादी दी जाती है अपने लाइफ पार्टनर्स चुनने के लिए। बस यही आजादी है अली, और कोई आजादी नहीं है बस यही एक आजादी है कि आप अपना लाइफ पार्टनर चुन ले अपनी मर्जी से। उस पे भी पता नहीं इमोशनल ब्लैकमेल के चुनते हैं या अपनी मर्जी से चुनते हैं हाँ, बस ये एक आजादी है हमारी अच्छा, कैलाश मतलब एक तरफ खवातीन को ये आजादी मिलती है, तो दूसरी तरफ एक और चीज जो खवातीन को मेरे ख्याल से बच्चे की पैदाइश के वक्त उनको बिल्कुल ही अलग वो क्या नाम था जो एक वो बनाया जाता है, वैशाली, लिंग। वैशाली, वैशाली। हाँ, वैशाली में बिठाया जाता है। तो वो भी जरा तफसीलन बताइएगा हमारे देखने वालों को, अली, वैशाली में असल में खवातीन को। उसको तो मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ, बीइंग ए लाइक फ्रॉम कैलाश कम्युनिटी। मुझे, आपको पता है, अभी जितने भी हमारी बात हुई है, मैं जो गलत है उसको मैं गलत कहती हूँ, जो सही है वो सही है। तो वो तो वैशाली जो है, वहाँ पे खवातीन स्पेशल डेज पे भी जाते हैं, जो उनके मंथली पीरियड्स में वो वैशाली जाते हैं, जो 6 दिन 7 दिन उन्होंने वहाँ पे गुजरना होता है, वो भी वहाँ पे वो गुजारते हैं। और स्पेशली जो खवातीन के बच्चे होते हैं, वो जिनके पैदाइश के बच्चे पैदाइश के वक्त उनको वैशाली ले जाया जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी प्रॉपर केयर होती है। प्रॉपर केयर ये होता है कि वहां पे जो लड़कियां आते हैं, वो भी उसका केयर करते हैं, उसके साथ बाकायदा उसकी अम्मी या उसकी सास उसके साथ होती है, उसका ख्याल रखने के लिए। वहां पे बच्चे घर पे होते हैं, खाना उनको बन के उधर तैयार मिलता है उसको वैशाली में। तो क्योंकि हम समझते हैं कि जो बच्चे की पैदाइश है वो इम्प्योर है, और जो मंथली जो खवातीन के मसले होते हैं वो भी इम्प्योर होते हैं, तो वो वैशाली में जाके वो सारे डेज उनको वहां पे निकलते हैं। क्योंकि सारा कैलाश का रिलीजन, मैं आपको एक बात बता दूं वाली, सारा कैलाश का जो रिलीजन है, ये बेस है प्योर और इम्प्योर पे, पाक ना पाक पे।
तो जो जितने भी इनके बिलीव सिस्टम है वो पाक नापाक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो कैलाश में इसी वजह से खवातीन के जब बच्चे होते हैं वो 10-15 दिन जो है वो बशाली में रहते हैं। उसके बाद जब वो निकल वहां से आते हैं तो उनकी एक प्रॉपर रिचुअल होता है। बच्चे और माँ दोनों को प्योरीफाई करके फिर घर ले आते हैं। तो वहां पे जो प्योरीफाई उनको बच्चे और माँ जो है वो वैशाली से जब वो साफ नहा धो के साफ होके निकलते हैं वहां से, तो उनके लिए एक शिशाऊ का रस्म होता है। शिशाऊ ये होता है कि वो ये ऊपर जो हमारे केटल हाउस है वहां पे ब्रेड बनते हैं उनके लिए, और ब्रेड बनने के बाद नीचे उनको एक जुनिपर जो जिसको जुनिपर ब्रांच जो होता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं उसको, उसी से उसको आग लगा के उनके सर पर ऐसा सर्कल कहते हैं जिसको हम शिशाऊ कहते हैं। तो उस सर्कल से उसको पानी के साथ उस सर्कल के साथ उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो 3 महीने बाद फिर दोबारा उसकी प्योरीफिकेशन होती है। फिर उसके बाद वो कुछ पार्ट्स जो गांव के कुछ पार्ट्स है वहां पे जाने की उसको परमिशन मिलती है, जिस तरह जमीनों में जाने की परमिशन होती है, घर में ऊपर वाला जो पोर्शन अपर पोर्शन है वहां जाने की परमिशन होती है। लेकिन स्प्रिंग फेस्टिवल तक वो हाई पास्टर्स नहीं जा सकते। हाई पास्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्योर समझा जाता है, पाक एरिया समझा जाता है, वो पाक एरिया में उनको कंसीडर होती है। फिर स्प्रिंग फेस्टिवल में माँ बच्चे को दूध से प्योरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद फिर वो अलाउड होता है। हमारे प्योरिफिकेशन के 4-5 किस्म है अली। पहले बच्चे को पानी से प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद दूध से किया जाता है, उसके बाद अगर वो लड़का है तो उसके लिए बकरा ज़बह करके उसके खून से उसको प्योरीफाई किया जाता है जब वो 7 साल का होता है। फिर जिस तरह अंगूर शराब का मैंने कहा, ये अंगूर के पानी का मैंने कहा, इससे बच्चों को सबको प्योरिफिकेशन इससे भी होती है। अगर आप गांव में यहाँ से जब भी जाती हूँ घर, तो मेरी माँ हमेशा कोशिश करती है कि वो मुझे जो वाइन ग्रेप वाइन है उससे मुझे प्योरीफाई करे। तो जिस तरह मैंने बताया पाक नापाक का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है कैलाश में। अच्छा, तो एक बात मैंने ये भी सुनी है कि कैलाश में अंडा मुर्गी और ये चीजें नहीं खाई जाती हैं, और उसको ये भी क्या ये पाक नापाक के जुमरे में आता है? बिल्कुल बिल्कुल अली, आजकल तो हम खाते हैं, हम तो मॉडर्न लोग हैं। चिकन अंडे के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। क्या करें अब, इतने लाइक चीजें वो है नहीं ना अली। अब क्या करें, अब बिस्किट खाओ तो उसमें भी अंडा है, केक खाओ उसमें भी अंडा है, हर चीज में अंडा है। तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। अभी हम इतने मिक्स हो गए कि अब हम ना भी खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे चीजों में वो खाया ही जाता है, तो उसको प्रॉपर बंद नहीं कर सकते। तो ये एक हमारी जो ये भी एक शामन वाली बात है। एक शामन हमारा जो लास्ट शामन था उसने कहा था कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी आएगा, तब तक मेरे ख्याल से शायद मुर्गियों का कंसेप्ट नहीं था कैलाश में। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी आप लोगों के नजर में आएगा जो उड़ नहीं पाएगा, वो जमीन पे ही रहेगा, लेकिन वो दूसरों की चीजों को नुकसान करके अपना पेट भरेगा, और उसका अंडा और गोश्त आप लोगों के लिए हराम है। तो इस वजह से जो है लोग फिर चिकन और अंडा नहीं खाते थे, अब तो खाते हैं, सारे खाते हैं। सही सही। अभी अगला जो सवाल है हमारे के हमारे दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि माय क्वेश्चन इज अबाउट द राइट्स। अच्छा, कैलाशी गर्ल्स आर बीइंग टेकन एज ब्राइड्स। अच्छा, फिर वही शादी के बाद उनको दीगर मज़ाहिब में मुंतकिल करने की बात है, जिस पे हम बात कर चुके हैं। अभी ये लोग जी उन्होंने जी अभी ज्वाइन किया, तो फिर से बताइएगा कि सिर्फ लड़के क्यों मुसलमान नहीं होते, सिर्फ लड़कियां क्यों होती हैं? क्योंकि लड़कियों को ज्यादा प्यार हो जाता है ना दूसरों से, इस वजह से। लड़के बेचारे को क्या पता कि लड़कियां यहाँ पे तो सारे घरों में रहते हैं ना, तो लड़कियां तो बाहर नहीं निकलते। अब लड़के बाहर निकलते तो उनके साथ तो फिर जाहिर सी बात है, अब लड़कियों की ही इंटरेक्शन ज्यादा होती है मुस्लिम लड़कों के साथ, तो फिर उनका ज्यादा होता है, लड़कों का नहीं होता। वो गरीब लड़कियों को कहाँ से देखेंगे, अब तो सारी लड़कियां तो घरों में होते हैं। तो बस ये एक रीजन है, लाइक शायद लड़कियां ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो ज्यादा, आई डोंट नो। ये बात ये एक वजह है, मुझे भी अभी तक नहीं समझ आया असल में। मैं खुद भी ये सवाल करती हूँ कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों, लड़के क्यों नहीं। तो ये तो खैर अली, आप ये भी सोचो, जो लाइक जो शादीशुदा है बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं यार, उस पर मुझे बड़ा दुख होता है। अभी लाइक कोई 10-15 दिन पहले की बात है, मेरे कजन की बीवी जो है उसकी बेटी को छोड़कर वो कन्वर्ट हुई है, वो भी किसी लड़के के साथ। तो ये बड़ी दुख की बात है कि बच्चों को छोड़कर, आप वो बच्चे ना इधर के रहते ना उधर, उन मासूमों का क्या होता है। ये बड़ा दुख मुझे कभी कभार मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता मुझे।
اچھا لیکن مطلب آپ اسی قبیلے کی ہیں، اسی گاؤں میں رہتی ہیں، تو کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوں گی نا کہ وجوہات جو یہ تمام چیزیں خواتین مجبور ہو جاتی ہیں یا پھر وہ ورغلایا جاتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی. اصل میں علی ایک تو یہ ہوتا ہے نا، آپ کو شاید پتا ہوگا یا نہیں ہوگا، چترال میں جو سب سے زیادہ ہائی سوسائڈ ریٹ ہے، یہ پورے پاکستان میں چترال میں سب سے زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ موت آسان ہے. ٹھیک ہے، کسی کو ٹینشن ہو گیا تو بغیر سوچے سمجھے جا کے دریا میں چھلانگ مار دی. تو کیلاش میں سوسائڈ نہیں ہے اس طرح سے، کوئی ایک دو کیس، ایک آدھ کیس ایسے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا کوئی سوسائڈ کیس نہیں ہوئے. وہاں پہ اگر کسی کو سزا دینی ہے نا، اب جیسے میں نے اپنے چاچا کی بات آپ کو بتائی، اس نے میرے دادا کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی اور اگلے دن وہ جا کے کنورٹ ہو گئے. تو بہت سارے کیسز تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہو جاتے تو وہ جا کے کنورٹ ہو جاتے ہیں. ابھی جو میرے کزن کی بیوی ہے جو کنورٹ ہوئی ہے، اس کا بھی یہی کہانی ہے، کیونکہ اس کے شوہر اور اس کے بیچ میں لڑائی ہوئی، وہ جا کے کنورٹ ہو گئی. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب ان کو کوئی بات بری لگتی ہے یا گھر میں کوئی لڑائی ہوتی ہے یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو پھر وہ جا کے کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ریزن ہے. اور دوسرا یہ میں نے بتایا آپ کو، اسکولنگ سسٹم ہماری جو ہے وہ بھی اس میں بڑا اثر کرتا ہے. اچھا، وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی سید گل، پچھلے سال جب میں آیا تھا، کہ کیلاشیوں کے ایک تو وہ ڈانسنگ پلیس ہے جس کو بہت زیادہ ہولی سمجھا جاتا ہے، اور ہاں جو گھر ہیں بمبریت میں نے دیکھا کہ ان کے گھروں کے باہر مسلمانوں کے جو مقدس نام ہیں وہ چپکائے گئے ہیں، کہیں بینرز پہ، کہیں تو اس کے کیا کہیں باقاعدہ کیل سے وہاں پہ لگائے گئے ہیں درختوں پہ، گھروں کے باہر ان کی تصاویر بھی میرے پاس موجود ہیں. تو کیا میرے یہ پاس بھی. وہ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا تو لوکل لوگوں کا یہ کہنا تھا، ایون لوکل جو وہاں مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم لوگ بالکل نہیں کرتے ہیں. تو جب وہ بالکل. نہیں کرتے ہیں تو آئے کون کرتا ہے؟ اصل میں علی آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے جو کیلاش میں جو مسلمان اور کیلاشی ہے نا، ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے. چترال میں بھی، میں خود چترال میں رہی ہوں ساری زندگی، میں نے چترالیوں کے ساتھ رہ کر پڑھا ہے، ابھی بھی میں چترال میں جاب کرتی ہوں، میرے چترالیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی کیلاشی یہاں پہ نہیں، میں انہیں کے ساتھ میرا سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہاں کے اپنے جو ذاتی لوگ ہیں نا جو آپس میں رہتے ہیں، ان کی تو لائک بہت بڑا جو آپ کہتے ہیں نا جس کو انٹر فیتھ ہارمنی، وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو جو انتشار پیدا کرنے والے لوگ وہ باہر سے آ کے کرتے، جو آپ نے دیکھے وہاں پہ جو لگے ہیں، وہ بھی کوئی گروپ آیا ہوا تھا، انہوں نے وہاں پہ سارے درختوں پہ وہ لگا کے چلے گئے. جو کہ بعد میں آرمی والوں کو پتا چل گیا تھا تو انہوں نے اس پہ کافی ایکشن بھی لیے تھے، کافی لوگوں کو انہوں نے لائک اس پہ کافی لوگوں کو انہوں نے پکڑا بھی تھا، اس پہ کافی وہ بھی کیا تھا، ایکشن لیا تھا، تبھی وہ اسٹاپ ہو گیا، ورنہ وہ تو سلسلہ ابھی تک تو شاید کوئی درخت بھی نہ رہ جاتا، پورے ویلی میں لگ جاتا ہے. تو اس بات پر جتنا آپ سمجھتے ہیں نا، میں نے جب میں نہیں تھی، میں پشاور میں تھی، میں جب آئی، میں ویلی گئی، میں نے وہ چیزیں دیکھی تو مجھے رونا آیا. رونا اس بات پہ آیا، دیکھو ایک تو یہ ہے کہ ہم بہت جذباتی قوم ہیں، مذہب کو لے کر، ہر چیز کو لے کر ہر کوئی جذباتی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی کتنا بھی اپنے مذہب سے پیار نہ کرے نا، اگر آپ اس کے مذہب کے بارے میں کچھ کہے تو وہ بندہ جذباتی ضرور ہوتا ہے اپنے مذہب کے حوالے سے، کیونکہ ایک مذہب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری رگوں میں بستا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم چاہتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مذہب کے بارے میں کوئی کچھ کہے اور مجھے غصہ نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں پہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اسی چیزیں. اگر کوئی چیز درخت سے نیچے گر جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، اگر کسی بچے نے وہاں پہ پاؤں رکھا تو وہاں پہ مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مجھے سب سے بڑا ڈر یہ تھا، جب میں وہاں پہ ایک میٹنگ میں بھی میں گئی تو میں نے یہ بات بتا دی، میں نے کہا مجھے سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ اس پہ پاؤں رکھے، یا ان لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، کوئی اس کو اٹھا کے کہیں پھینک دے، ایسا نہ ہو اس بات پہ کوئی لڑائی ہو جائے کہ اس نے بالکل. اس کے ساتھ بے حرمتی کی ہے. آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، سوری قطع کلامی کے لیے، کیونکہ میں نے ایک اور واقعہ وہاں پہ سنا تھا، وہ یہ تھا کہ اسی طرح کا کوئی مقدس نام، مسلمانوں کا مقدس نام اللہ کا نام تھا یا جو بھی تھا، تو وہ کہا وہاں کہیں لگایا گیا تھا، تو بارش کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا، تو ہوں بعد میں وہاں آس پاس رہنے والوں کو بلاسفیمی کے تحت ان پر مقدمہ ہوا تھا، ڈرایا دھمکایا گیا تھا. تو ایسا اس ہی طرح ہوتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟
ये हो सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं है अली, क्योंकि मैं सबसे पहले मैंने ये बात कही थी क्योंकि मुझे इस चीज का अंदाजा था। हो भी सकता है क्योंकि मुझे इस चीज का पहले से ही अंदाजा था। जब मैं आई वेलीज में मैंने वो चीजें देखी तो मुझे सबसे पहले इसी बात का मुझे डर लगा कि ये हो सकता है कि इसकी वजह से कोई मसला ना हो, क्योंकि हम बहुत प्यारे लोग हैं, हम बहुत अमन से रहते हैं। अगर मुसलमान के घर में कोई खफगी होती है, कोई उनके घर में कोई नुकसान होता है, तो हमारे लोग जाके उनके कब्र खोदते हैं। हमारे घर में होता है, वो हमारे घर में आके करते हैं। हम बड़े अमन से रहने वाले लोग हैं। तो ये चीजें जो है, ये जो कुछ लोग बाहर से आते हैं वो ये चीजें करके जाते हैं। अली, आपको एक और बात मैं बता दूं, पहले हमारे खवातीन, जैसे आपने बताया, बशाली जाते हैं ना, तो बशाली हमारे ऐसी जगह पर है, जब बारिशें होती है तो वहां पे सैलाब आने का खतरा होता है। तो वहां पे जब सैलाब आने का खतरा होता था तो हमारी माएँ, जो हमारी बेटियां होते थे, वो जाके किसी मुसलमान के घर में रहते थे। जितना उनके दिन होते थे वो वहां पे पूरे होते थे। 2015 में जब सैलाब आया तो हमारे खवातीन रोड्स पे थे। उनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था अपने घर में, क्योंकि वो ये वजह नहीं है, इससे पहले भी तो वही लोग थे ना, वही रह रहे थे वहां पे। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, जो ग्रुप्स आते हैं, जो वहां पे जिस तरह से उनका उठना बैठना होता है, फिर वो जो, जैसे मैंने बताया, इन्वायरमेंट का जो असर होता है, उससे फिर हमारी अपने जो आपस में जो इंटरफेथ हार्मनी है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो अभी सबको जो है लगता है कि नहीं, हमारे हमारे हम तो पता नहीं, लष्टावी है हमारे घर में, पता नहीं लष्टावी क्या क्या होता है, तावीज बनाते हैं, हाँ तो ये हाँ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मुझे 2015 में जब मैंने वो चीज देखी तो मेरी दादी और मेरे दादा, अल्लाह उनको सेहत दे, दोनों ने मुझे एक कहानी सुनाई। मेरी दादी ने मुझे कहा कि मैंने फलां बंदे, उस बंदे का नाम लेके उसने कहा कि उसके घर में मैंने 10 दिन गुजारा है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरी माँ, इवन हम किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं, हम सारे जितने भी हम बहन भाई है, सिवाय मेरी छोटी बहन के, हम सारे किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं। उन्होंने मेरी माँ को 15-20 दिन अपने घर में रखा, उसका ख्याल रखा। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, जो टॉलरेंस हमारी है, जो हमारे जो आपस में इंटरफेथ है, जो भाईचारा है, वो खराब हो रहा है। मुझे इस चीज का बड़ा डर लगता है। तो ये खराब आप कहती हैं कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी नहीं करती है, नहीं तो करती, फिर बिल्कुल। क्या होता है, कैसे होता है? तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो लोकल या डोमेस्टिक टूरिस्ट है, उनका कहीं इसी ना तरह कहीं असर है, उनका असर है, कहीं ना कहीं उनका असर है, बिल्कुल इसी तरह है। सही। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारे काफी सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो बिल्कुल देख रहे हैं, हाँ। तो जरा सा हम मजीद बताएं, क्योंकि ये अक्सर ये होता है कि चिलम जोश के जो फेस्टिवल है या दीगर रिचुअल्स में लोग आते हैं। और एक और बात मैंने अपनी आंखों से देखा है, जोशी के फेस्टिवल के दौरान हम्म। खवातीन अंदर डांस कर रही हैं, जी। और जितने भी टूरिस्ट हैं वो कैमरे लेके, मोबाइल फोन लेके अंदर घुस रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये जो मसाइल टूरिस्ट की वजह से आप लोग मसाइल का सामना करते हैं, वो जरा बताइएगा, ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो दीगर जाने वालों को ये पैगाम तो कम से कम पहुंचाएं। असल में अली, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि कोई डोमेस्टिक टूरिस्ट अगर वो नीचे से आते हैं ना कैलाश की तरफ, तो वो, मैंने बताया आपको कि एहसान करते हैं हमारे ऊपर कि हाँ, हम इतने दूर से आए हैं, तो जो है हम पिक्चर भी खींचेंगे, हम घर में भी घुसेंगे, हम फेस्टिवल में भी घुसेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ये करेंगे। तो ये एक जो मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। यूट्यूब में जिस तरह से लोगों ने वीडियोस, खुद को मशहूर करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए जो वीडियोस बना के डालते हैं कि ये होता है, मैंने मुझे ऐसे ऐसे अल्फाज भी मैंने यूट्यूब में देखे हैं, जो वीडियो उन्होंने बनाए हैं, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। एक बंदा इतना हद तक अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने यूट्यूब में कुछ व्यूवर्स पैदा करने के लिए या सब्सक्राइबर्स पैदा करने के लिए, किसी कौम को बदनाम करना या उसके नाम पे ऐसा गंदी वीडियो बनाना कि वहां पे ये भी हलाल है, वहां पे ये भी करना सही है, तो ये गलत है। कुछ लोगों का ये, फिर वहां से ही वो अपना एक माइंड लेके आते हैं, मजीद रिसर्च नहीं करते। यूट्यूब पे देख लिया, अच्छा यूट्यूब में ये आ गया तो बाकी मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी मस्ती करूंगा, मैं भी कैमरा लेके अंदर घुसूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन अच्छी चीज ये है अली, अभी अच्छी चीज ये है कि अभी 2019 में वहां पे तकरीबन 32 बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू, यूनेस्को और इनके कोलैबोरेशन पे ट्रेन हुए हैं एज अ टूर गाइड। तो अब चीजें बेहतर हो रहे हैं। तो अभी उन्होंने कैलाश के ही बच्चों को और बच्चियों को गाइड ट्रेन किया है, तो अभी इंशाल्लाह वहां पे टूरिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पे भी, एनजीओ लेवल पे भी। तो होपफुली कि अभी ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आया है
کہ हम्म कैलाश से तो बहुत सारे लोग कैलाशी कन्वर्ट होके या तो मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमान ही हो जाते हैं। तो क्या कोई और बंदा अगर वो कैलाशी में कन्वर्ट होना चाहे तो क्या वो हो सकता है, या क्या पाबंदियां हैं? हाय अली हम पहले ही बहुत डरे हुए, ना डरा हो हाँ होते हैं। अभी रिसेंटली एक बंदा वो मेरे ख्याल से जर्मन का था कि पता नहीं कोई यूरोपियन कंट्री का था, कोई अंग्रेज गोरा था, वो रंबूर आया था, तो उसने वहां पे जो प्योरिफिकेशन वाला रिचुअल है वो करके वो कैलाशी बन के कोई महीना रहा है, फिर चला गया। उसने मुझे भी मैसेज किया था उसने कि मैं अभी कैलाशी हो गया। उसने अपना नाम भी सुम्बारा खान कैलाश के नाम पे रखा हुआ है। तो लेकिन मुस्लिम्स को नहीं अलाउ ना, वो तो नहीं हो सकता कन्वर्ट कैलाशी में, जाहिर सी बात है। बाकी अच्छा, जो है वो तो करते हैं। हाँ सही। तो मुसलमानों पे ये पाबंदी क्यों लगाई आपने? हमने नहीं, उन्होंने खुद लगाई है अच्छा, कोई भी मुस्लिम कैलाश में कन्वर्ट होना चाहे तो वो हो सकता है। नहीं हो सकता क्योंकि हमें अपनी जान बहुत प्यारी है अली। अगर उधर उसको संसार करने के चक्कर में हम 4,000 हमें भी खत्म करें, बेहतर है कि वो ना ही हो तो बेहतर है अच्छा, अब कुछ रिचुअल्स पे बात करते हैं। रिचुअल हम्म कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक कैलाशी जो कैलाश का कोई भी फर्द अगर इंतकाल कर जाता था तो उसको हम्म दफनाया नहीं जाता था। हम्म उसको दफनाया नहीं जाता था। उसके पास जो भी सामान होते थे, सामान समेत उसको कहीं एक मखसूस जगह पे रखा जाता था। अली असल में दफनाने का रस्म बहुत पहले से था। जैसे मैंने बताया ना कि जब ये सेंट्रल एशियंस आए 14-15 सेंचुरी में, तो कैलाश के लोग यहाँ से भाग के वो केव्स में रह रहे थे। अभी भी बम्बुरेत में हमारी बहुत शार्ट मुलाकात रही मेरी और आपकी, वरना मैं आपको बता देती कि वो केव्स कहाँ कहाँ पे वाकया है। बाकायदा हमारी आर्कियोलॉजिकल टीम ने उन केव्स की सर्वे की हुई है। तो 500 साल कैलाश के लोगों ने उन केव्स में जिंदगी गुजारी है। तो वहां पे किसी की डेथ होती थी तो वो डर के मारे उनको ताबूत में रखकर नीचे जो है ग्रेवयार्ड में छोड़ के वापस चले जाते थे कि कोई उन पर हमला ना करे, क्योंकि बॉर्डर्स खुले थे, अफगानिस्तान से भी लोग आते थे, बहुत सारे थ्रेट्स थे उनको। तो ये रीजन थी कि लोग दफना नहीं सकते थे, मजबूरी की वजह से ऊपर रखते थे। जो चीजें जहां तक रखने का सवाल है वो ये था कि उनकी कंसेप्ट ये थी कि क्योंकि बंदे से रिलेटेड कोई भी चीज घर में रहती थी तो बार बार उसकी याद आती थी और वो तकलीफ देते थे उनको। तो वो उस तकलीफ से बचने के लिए उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती थी वो दफना देते थे उसके साथ। वो अब भी हम करते हैं। हम जो बंदा जिस दुनिया से चला जाता है उसकी चीजें जो उसके साथ दफनाते वो तो दफनाते, जो रह जाते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम घर में नहीं रखते वो चीजें। तो ये रीजन थे कि उसको ऊपर कुछ लोगों की वसीयत होती थी, जिस तरह अभी भी रिसेंटली हमारे गांव में एक बंदे की डेथ हो गई थी तो उसने वसीयत कहा था कि मेरी कब्र को ऊपर रखा जाए। तो कुछ लोग वसीयतन जो है अपना कब्र ऊपर रखवाते थे, जिसमें बाकायदा डेकोरेशन भी वो होते थे। आपने शायद देखा होगा कि रकाल गांव में उनके ऊपर कुछ बने हुए होते थे, ऐसे डेकोरेशन हुआ होता था। अच्छा जी। अच्छा, कुछ हमारे पैगामात भी आ रहे हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं, तो उसके लिए तो मुनीर नियाजी साहब का एक शेर याद आता है कि सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। तो सही ज्यादातर सवालात ऐसे हैं। कुछ दोस्तों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, वो वही बातें हाँ दोहरा रहे हैं, तो टाइम नहीं, ये वीडियो एंड हो जाए तो आप बाद में पूरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बिल्कुल सारे बिल्कुल, सवाल पूरा देखिए, शुरू से देखिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आया कि बुम्बरेत कैलाश सब जाते हैं, वहां के मसाइल से आगाह भी होते हैं, लेकिन बिरीर कैलाश की अक्सरियत को डरा धमका कर मजहब तब्दील किया गया था, क्या ये हकीकत है? बिरीर अली बिरीर में आपको एक बात बता दूं, बिरीर एक अभी भी अगर आप देखें ना वहां पे बैकवर्डिज्म बहुत ज्यादा है। आप बिरीर का आप जरूर विजिट करें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी चित्राल आए आप एक दफा मैं गया बिरीर था। विजिट कर। आप गए थे? तो बिरीर के लोग जो है ना अभी भी वो बहुत पीछे है, मरा उनको समझ ही कुछ नहीं आती। तो वहां पे इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अभी 160 फैमिलीज रह गए हैं कैलाश के। तो वहां पे मुस्लिम डोमिनेंस बहुत ज्यादा है और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। आप एक घर है तो उसके पीछे मदरसा बना हुआ है, आगे मस्जिद बनी हुई है, तो दरमियान में घर है। तो वहां पे इस तरह के वो है। तो फोर्स में अगेन वही कह रही हूँ कि फोर्स डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो तो दैट्स वो द साइलेंट किलिंग ऑफ कल्चर, मतलब जो इनडायरेक्ट है ना, वो फिर नजर भी नहीं आता और वो बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल सईद, आपने बड़ी अच्छी बात की और तफसीलन कही, लेकिन कुछ बातें जो, चूंकि जब भी मैंने कैलाश में गया हूँ मैंने बड़े करीब से ये चीजें देखी है, तमाम मैं दोस्तों के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ कुछ बातें, कि मैं कैलाश जाके कुछ स्कूलों का मैंने विजिट किया और वहाँ बच्चों से मैंने कुछ सवालात पूछे, उनसे घुल मिल के तकरीबन हम 2-3 घंटे वहाँ पे बच्चों के साथ खेलते रहे। तो वहां पे बच्चे, कैलाश के जो बच्चे हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हैं। बहुत ज्यादा, बहुत इसलिए, ज्यादा। हाँ, एहसास कमतरी का शिकार इसलिए हैं, जो मुझे जो लगा कि आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं, वो उनसे सवालात पूछते हैं कि खुदा के हवाले से, अल्लाह के हवाले से, कुरान शरीफ के हवाले से, दीगर, क्योंकि कैलाश वालों के अकाइद थोड़े मुख्तलिफ हैं। जी, तो ऐसा ही। जाहिर है एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, उसमें एक कैलाशा है या 2 कैलाशा हैं। आप हम्म, उन्हें ये पढ़ाया बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भाई अगर आपने 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी तो आप दोजख की आग में जल जाओगे। तो ऐसा ही है, 5 साल का बच्चा, वो 10 साल का बच्चा जो ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा है, वो भी उस्ताद से, उस्ताद हमेशा आइडियल आइडियल होता है एक ऐसा ही है। बच्चे। आई एग्री, आई एग्री। तो तो वो फिर एहसास कमतरी का शिकार होता है। ये चीज मैंने खुद देखी है, आप इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल हूँ, 100% हूँ अली। अली, ये चीजें सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है ना, तो वो मैंने सहा है। क्योंकि मैंने सारी जिंदगी जो है आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक वक्त तो ऐसा था कि मुझे लाइक मेरे फैमिली में भी बोलने से मुझे डर लगता था कि मैं बोलूंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी स्टोरीज है जो जो मैं चाहते हुए भी शेयर नहीं कर सकती। लाइक आप, आपको ऐसा डराया जाता है कि अगर आपने ये बोल दिया तो आपके साथ ये हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, आप फिर जब आप उस एक डोमिनेंसी में आप रहते हैं, आप एक एक लाइक आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है, तो आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाती है। मेरे साथ ये हुआ है, मेरी कॉन्फिडेंस लेवल जीरो थी, मैं बात भी नहीं कर पाती थी। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बात करूंगी तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो मैं बचपन से ही लाइक स्कूल में, और मेरे मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा जो है ना स्टेज पे बोलने के लिए मुझे हमेशा इनकरेज करते थे, तुमने बोलना है, नहीं बोला तो कल से स्कूल नहीं जाएगी। तो ये एक स्कूल छोड़ने के डर से मुझे बोलना पड़ता था, इस वजह से ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो फिर मैं मुझ में आ गई। तो अच्छा, क्या कैलाश में, चित्राल में कैलाशियों के लिए अपने स्कूल्स हैं जहां वहां को अपने अकाइद के हवाले से पढ़ाया जाता हो, सिखाया जाता हो? नहीं, सिर्फ कैलाशदूर म्यूजियम जहाँ पे है उसके अंदर एक स्कूल है जहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली से एक बच्चा या बच्ची अलाउड है जाना, बाकी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा जी। जी। कुछ लोगों की ये गलत फहमियां भी हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि कैलाशियों को तो बाहर से बहुत सारे लोग फंड्स करते हैं, उनको कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे अली, कसम से मुझे अल्लाह कर इनके मुंह में घी शक्कर बात सच हो जाए, हम कुछ करेंगे ही नहीं, घर में बैठ के कमाएंगे। मुझे एक दफा मैंने पढ़ा, एक आर्टिकल, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कैलाशियों को एक फैमिली ने अडॉप्ट किया होता है, उसको इतने पैसे मिलते हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये कौन फैमिली है जिनको इतने पैसे मिलते हैं, हमें तो आज तक किसी ने कुछ दिया नहीं है। सारी जिंदगी हमने लाइक खुआरी करके पढ़ाई की है। तो ये शायद इस वजह से कह रहे हूँ, क्योंकि जब ये ग्रीक्स अथानासी के किडनैपिंग से पहले जब ये ग्रीक्स थे कैलाश में, तो वो स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को। मैंने खुद भी उनकी स्कॉलरशिप ली है जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में। तो स्कूल कॉलेजेस में वो स्कॉलरशिप देते थे। ग्रीक जो वॉलंटियर्स थे वहां पे, अथानासी लॉरेंस को किडनैप के से पहले की बात है, ये 2009 से पहले की बात है। उसके बाद जब उसकी किडनैपिंग हो गई, फिर उसको डिपोर्ट किया गया, उसके बाद कोई ऐसा स्कॉलरशिप भी उनकी तरफ से फिर नहीं आई है। तो शायद इस वजह से लोगों को ये गलत फहमी हुई है। अच्छा, मतलब ये है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि कोई कैलाशियों को हकीकत कोई नहीं है, स्कॉलरशिप। कोई नहीं है। हाँ। वरना मैं तो मैसेज करने वाला था, अकाउंट नंबर भेजने वाला था आपको। अच्छा, नहीं तो बेच देते हैं ना। अच्छा जी। तो अब चूंकि बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं कुछ रिचुअल्स हाँ। के हवाले से, और खुसूसन मैं बार बार आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग हैं वो जून जुलाई में कैलाश की तरफ जाते हैं और उनका रवैया मैंने देखा है सही नहीं होता। तो हाँ।
थोड़ा सा हमारे जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए ये बताना आपने है कि उनका रवैया किस तरह होना चाहिए, एक टूरिस्ट जब आता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या कुछ पढ़ना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि अली, सबसे पहले जो है एक कल्चर की वैल्यूज की अगर कोई ख्याल रखे तो वही बहुत बड़ी बात है। स्टार्ट ही वहां से होती है। आप कैलाश जाते हैं तो आप ये समझ के जाए कि आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, वहां पे भी आप जैसे ही लोग रह रहे हैं, कोई स्पेशल स्पीशी नहीं रह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में बैठाना है कि वहां पे भी मेरे तरह ही लोग हैं, मैं भी उनसे भी मैंने वैसे ही मिलना है जैसे मैं इस्लामाबाद में या पिंडी, लाहौर, कराची कहीं पे भी मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं जो वैसे भी वहां पे भी जाके भी लोगों से मिलना है। पहले तो ये बात अपने जहन में बैठाना है, कैलाश के लोग भी वैसे ही लोग हैं जैसे दूसरे शहरों में लोग रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम कैलाश में सिर्फ कैलाश नहीं रहते, जैसे मैंने बताया वहां पे हम दो कम्युनिटीज रहते हैं, हमारे साथ मुस्लिम भी है, हम भी है। तो जैसे मैंने बताया, फिर वहां पे हमारे आपस में फिर चीजें खराब हो जाते हैं टूरिज्म की वजह से। तो इनको चाहिए जब वो आते हैं तो कम से कम डूज और डोंट्स को फॉलो करें। टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर जो चित्राल में बना हुआ है, एक दफा वहां का विजिट करें, ब्रोशर्स उठाएं। अब तो वहां पे 32 गाइड्स हैं। मैं सबको जितने भी हमें सुन रहे हैं उन सबको कह देती हूँ कि आप 32 गाइड्स, ट्रेन गाइड है कैलाश में। किसी भी होटल जाए, मैनेजर से बात करें, वो आपको, अगर कोई फैमिलीज है तो उनको लड़कियां गाइड करेंगे, अगर कोई फैमिलीज नहीं है, लड़के हैं, तो उनके लिए लड़के गाइड है वहां पे। उनको प्रॉपर तरीके से टेम्पल भी दिखाएंगे, कल्चर भी दिखाएंगे, कल्चर को देखे, उसको एंजॉय करे। जहाँ पे पिक्चर लेने की जरूरत है परमिशन ले ले, तस्वीर भी ले ले। तो एक अच्छे सिटीजन की तरह जाएं कैलाश, अच्छे सिटीजन की तरह उसको देखे, अच्छे सिटीजन की तरह उसको एंजॉय करे, वो भी आपकी तरह लोग है। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, अदरवाइज तो। अच्छा जी, एक और सवाल हमारे नईम शाह साहब का है, नसीम शाह साहब। वो कहते हैं कि अली आस्क्ड वेदर दे हैव फ्रीडम टू डू देयर रिलीजन एक्टिविटीज और नॉट, और ओवर देयर। बिल्कुल नहीं, रिलीजन एक्टिविटीज पे तो कोई पाबंदी नहीं है अली। वो तो हम बड़े लाइक हम बड़े शान से करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज पे अभी तक किसी ने नहीं रोका है, बल्कि सपोर्ट करते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज में। हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है वो हमें दे देते हैं, जो भी चीज लाइक कभी नहीं रोका, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इस चीजों में, जितने भी रिलीजियस फेस्टिविटीज है उनमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। सही। और थोड़ा सा कि डू एंड डोंट वाली जो बातें आपने की है ना, वो थोड़ा सा, चूंकि हमें वो थोड़ा सा आप तफसीलन बताइएगा कि कौन कौन से काम करने चाहिए जो डोमेस्टिक टूरिस्ट वहां आते हैं, कौन से नहीं करने चाहिए, वो थोड़ा सा आप बताइएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जिस तरह विशाली पे हाथ लगाना, उसके पास जाना, आप उसको बेहतर नहीं समझते, ठीक है? नहीं, वो हम तो नापाक समझते हैं ना, उसको छूने के बाद तो आप गांव नहीं आ सकते ना, वो तो फिर एक अलग चीज है ना। तो देखो, गांव में आने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब गांव पे आते हैं तो एक तो ये कि बगैर परमिशन किसी के घर में ना घुसे। और दूसरा ये कि अगर कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई अपने दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, वो लोग बहुत तंग आ चुके हैं कैमरा से, तो विदाउट परमिशन तस्वीरें ना खींचे। कम से कम इतना करे कि अगर आप किसी की तस्वीर ले रहे हैं तो आप परमिशन ले ले, अगर वो परमिशन दे रही है तो बेशक उसकी तस्वीर खींचे। और दूसरा, जितने हमारे सेक्रेट एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल अब खवातीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे टेम्पल की जो छत है वहां पे खवातीन नहीं जाते, अलाउड नहीं है खवातीन का जाना, हम खुद भी नहीं जाते वहां पे। तो मैंने बहुत सारे फैमिलीज ऐसे देखे हैं जो आते हैं तो वो टेम्पल के छत पे जाके चढ़ जाते हैं, उन वो तो चले जाते तो हमारे उसके बाद हमें बकरा ज़बह करके उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है। कुछ पास्टर्स में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खवातीन का जाना परमिशन नहीं है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मर्द जाना अलाउड नहीं है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसा वैशाली है, वैशाली में ना मर्द जा सकते ना खवातीन जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें गए तो फिर आप वापस गांव नहीं आ सकते। अगर आपने गांव आना है तो फिर आप फिर वहां पे नहा धो के दूसरे कपड़े पहन के फिर आप गांव आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो उसको इम्प्योर समझा जाता है। और बाकी ये है कि आप किसी फेस्टिवल में जाते हैं तो बीच में ना घुसिए। पूरा एक प्रॉपर, जैसे मैंने बताया, गाइड्स हैं वहां पे, उनसे पूछे, कल्चर के बारे में जानिए, कल्चर को समझिए। कैलाश के लोग चाहे वो मुस्लिम है, कैलाशी है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, उसी तरह डबल देंगे आपको। तो आप ग्रेवयार्ड पे जाते हैं, सबसे बड़ी बात अली, जब ग्रेवयार्ड जाते हैं तो हड्डियां उठा के उनके साथ तस्वीरें खींचते हैं। यार ऐसा कौन करता है?
ऐसा कौन करता है किसी के? यार आप हाड़ियों के साथ बेहुरमती करते हो, कब्रिस्तान जाके हाड़ियां उठा के उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। तो काइंडली प्लीज जितने भी लिसनर्स हैं सुने, ये वो भी किसी के कब्र है, किसी के बाप दादा है वहां पे, वो मजबूरी में उन्होंने अपने कब्रों को ऊपर रखा है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हाड़ियां उठा के उनके साथ तस्वीरें बनाएं और कब्रों के ऊपर चढ़ के आप जो है टिकटॉक बनाएं। प्लीज ये बहुत 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 गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम हम, अगर वहां पे कोई चौकीदार नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो कम से कम हमें खुद, आप जिस तरह हम खुद को एजुकेटेड कहते हैं, खुद को बड़ा तालीम याफ्ता समझते हैं, तो अगर हमने थोड़ी सी भी एबीसी पढ़ी है ना मैट्रिक तक, तो उसका भी लिहाज करते हुए हमें जो है ना इस तरह की चीजों में थोड़ा सा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। सही। अच्छा जी, कुछ थोड़ा सा मजीद एक लाइटर उसकी तरफ जाते हैं। जी जी अली। कुछ कुछ वाकयात ऐसे हैं कि वाकई में बहुत ज्यादा अफसोस होता है, हम जज्बात मतलब हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। नहीं रख पाते अली, मैं खुद बहुत जज्बाती होती हूँ कभी कभार, सीरियसली। मैंने पिछले साल खुद देखा है सईद के, जब मैं डांसिंग जो प्लेस है वहां पर कौन सी रिचुअल होती है आपकी, तो उस दौरान कहाँ पे? बुबरेत में, जी जी। तो जब वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं तो जितने भी लोग थे वो कैमरे लेके अंदर घुस रहे थे। वहां एक बंदे से मैंने पूछा कि यार आपको क्या मुश्किलात दरपेश आती, तो वहां एक जो कैलाशी था उसने एक बात कही, उसने कहा कैलाशा ने कि हाँ अब हम मजबूर हो गए हैं इन टूरिस्ट की वजह से या इन लोगों की वजह से कि हम अपनी लड़कियों को अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए नहीं आने देते, या बहुत सारी खवातीन खुद नहीं आती हैं क्योंकि इस तरह डिस्टर्ब किया जाता है। इज इट ट्रू? ऐसा ही अली, पिछले साल जो अभी जो गुजरा है 2019 में जो फेस्टिवल गुजरा, मैंने खुद बड़े डांस किए, तो जितने भी लड़कियां थी जिन्होंने कभी फेस्टिवल नहीं ज्वाइन किया, तो वो भी आए थे। रीजन पता है क्या है? रमजान से डोमेस्टिक टूरिस्ट है ही नहीं, तो हमने खुल के एंजॉय किया है। अब यकीन जानिए, मैंने जितने भी वहां पे लड़कियों को देखा उनसे मैंने बात की, सबने यही कहा, कहते बाजी हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना अभी कितना खुले खुले हम डांस कर रहे हैं, असल में लोगों की जो है ना मजबूरी भी ये है ना कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, जगह बहुत कम है, तो वहां पे अब खड़े होने की भी जगह नहीं, और उस पे जो हमारे ऊपर गुजरती है वो हम ही समझ सकते हैं, तो हम और भी जो है ना आइसोलेट हो जाते हैं, और उस बीच में ना आप परफॉर्म कर पाते हैं, ना आप डांस कर पाते हैं, ना आप सही तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, तो ये काफी चीजें, इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं फिर। हमारे एक दोस्त है असलम साहब, बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पे, कह रहे कि मैं हरियाणा का पूछ पूछ के थक गया हूँ। दोस्त मैंने कहा था कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस पे, तकरीबन 15-20 मिनट हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर हाँ आप थोड़ा सा सब्र करके बाद में वीडियो देख सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ हाँ फिर भी, इस तरह के सैदुल ने भी बता दिया कि हाँ वो कन्वर्ट हो चुकी हैं, और उसकी वजूहात भी हमने बता दी। तो फिर वही होती है कि भाई किसी को अपने किए का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ऐसा ही है यार, इसी तरह ही है। असलम साहब आप नाराज ना होइएगा। अच्छा, ये जो रमजान के हवाले से जो परफॉर्मेंस और रिचुअल्स में आपने एंजॉय किया, तो उस पर बड़े हंसी भी आती थी, लेकिन जितने भी देखने वाले हैं मैं उन सबसे यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है, और हमारे लिए मैं कहता हूं कि उन तमाम लोगों के लिए, उन डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए जो डिस्टर्ब करते हैं, उन सब के लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि हमारी वजह से एक कबीला है वो अपने मजहबी जो रिचुअल से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा कि हम कुर्बानी कर रहे हैं मुसलमान, ठीक है, बकरा जो कुर्बानी कर रहे हैं, वहां कोई बंदा आए, कोई नॉन मुस्लिम हो, अंदर घुस जाए, आपको वो, या फिर नमाज पढ़ते वक्त मस्जिद में घुस जाए, आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाए, वीडियो बनाए, तस्वीरें बनाए, क्या हम उसको बर्दाश्त करते? ऐसा ही कभी है, ऐसा ही है। बर्दाश्त। तो उसी तरह कैलाश में भी यही हो रहा है, उनके रिचुअल्स के दौरान, उनके इबादत के दौरान उसमें खलल डाला जा रहा है, उनकी तस्वीर बनाई जा रही है। क्या हम बर्दाश्त करेंगे कि हमारे घर की कोई खातून नमाज पढ़ रही हो या कोई काम कर रही हो कि कोई और बंदा आके उसकी तस्वीर बनाए या उसकी वीडियो बनाए? क्या हम बर्दाश्त करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करते उस बंदे का। मैं तो ये कहता हूं कि खुदा ना खास्ता लोग उसको कत्ल करें। ये ऐसा ही निहायत है, ऐसा है। शर्मनाक बात है, निहायत ही मेरे ख्याल से अखलाकियात तो यहाँ बात ही नहीं है।
تو کچھ ریچولز کے حوالے سے کچھ اور بات کرتے ہیں. سید گل کے کہا جاتا ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے کسی بھی فرد کا تو اس کے گھر میں کوئی 50 60 70 بکرے بکریاں بھیڑ وغیرہ کاٹتے ہیں، پھر ڈانس وغیرہ ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ان کو. ہائے علی، میرے چاچو کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے مسلم کمیونٹی میں شادی ہو جاتی ہے تو وہ 10 سال کے لیے قرض دار ہو جاتے ہیں. ہمارے خاندان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم قرض دار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات ایک حقیقت بھی ہے، اس پہ نا بہت سارا حقیقت ہے. لائک ساری زندگی آپ ایک جمع کرتے ہو جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ 60 70 بکریاں ذبح کرتے ہو تو آپ ایک دم سے پھر سے نیچے کی طرف آتے ہو. لائک ایک زیرو سے آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوتا ہے. پاسٹ میں تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے زمینیں تک بیچی ہے اس ریچول کے لیے لوگوں کے زمینیں تک گئے، لوگوں کے جنگلات گئے اس پرفارمنس کو پورا کرنے کے لیے. تو اس میں شروع میں لائک یہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا. میرا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں اور میرا بھائی اکثر بیٹھتے تھے، ہم اس پہ بات کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے میرا جو بڑا بھائی ہے وہ سنگر بننا چاہتا تھا، وہ نہیں بن پایا کیونکہ میرے دادا جی کہتا ہے کہ نہیں بکریاں نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے موت کے ریچولز کیسے ہوں گے. تو یہ بہت ایک مشکل جس مشکل سے ہم گزرے ہیں. گھر میں لڑائیاں ہمیشہ، میرے بھائی کو کیونکہ سنگر بننا تھا تو وہ نہیں بن پایا تاکہ لوگوں کی اکانومی پہ بھی اثر نہ پڑے. کیلاش کے لوگ غریب نہیں ہیں علی، ان کی ایک موت پہ جتنا خرچہ آتا ہے نا وہ ان کو زیرو پہ لے کے آتا ہے پھر. تو اس وجہ سے لوگوں پہ کافی سارے فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں. تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے بھائی نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ گاؤں میں ایک ایسا سسٹم کریں گے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پورا گاؤں کنٹریبیوٹ کرے گا. ایک بکرا، 20 کلو آٹا، 4 کلو گھی اور 6 کلو پنیر ہر گھر سے آئے گا. تو جس گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے تو اس گھر میں پھر یہ خرچہ جو ہے یہ کم پڑے گا، اس بندے کو بھی اتنا ہی خرچہ دینا ہوگا جتنا ہر گھر سے آتا ہے. تو یہ ہمارے گاؤں میں ہم نے یہ سسٹم کیا، پھر دوسرے گاؤں میں بھی اسی طرح ہوا. اب آہستہ آہستہ اس چیز کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگ. اب ڈسٹریبیوشن سے یہ ہے کہ اس بندے پر برڈن کم ہو رہا ہے. اس طرح سے ریچول بھی ختم نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو برڈن ہے یہ بھی کم ہو رہا ہے لوگوں پہ. تو یہ ایک اچھی چیز تھی جو میرے بھائی نے کیا. تو مطلب آئی ریئلی پراؤڈ آف ہم کہ اس نے ایک اچھا کام اس دنیا میں کیا جانے سے پہلے. تو یہ چیزیں کافی مشکل ہے. کیلاش کلچر جو ہے نا علی بہت مشکل کلچر ہے، بہت کاسٹلی ہے. ان کی موت، ان کے ریچولز، ان کے ان کی جو جتنے بھی وہ ہے کافی چیزیں جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. ہاں اچھا، ابھی چند سال پہلے ہی یو این نے میرے خیال سے کچھ جو ہیریٹیج وغیرہ ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے اس میں کیلاش کلچر کو بھی شامل کیا ہے. اس سے کیا آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو فائدہ کا تو مجھے نہیں پتا علی، لیکن یہ کہ انہوں نے جو سوری جاگے ایک رسم ہے جو یہ سن ابزرونگ کا تھا، کیونکہ سن ابزرونگ یہ کیا اسی سن ابزرونگ سے ہم پورے سال کا حساب لگاتے ہیں. لائک اس سال کیسا ہوگا موسم اور کس طرح سے ہوگا. یہ ایک ریچول جو کیلاش کے لوگ پرفارم کرتے رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ ایک ریچول ہے جو کہ پریزرو ہو گیا، اچھی چیز ہے جو پریزرو ہو گیا، یو این کے لسٹ میں آ گیا. آپ اس پہ جو ہے مزید لوگ جو ہیں اس کو کرتے ہیں. ابھی پہلے یہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے جو یہ سن آبزرو کا کام کرتے تھے. ابھی یہ کہ اب کچھ ینگ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اب یہ کام کر رہے ہیں اس میں، ابھی وہ بھی دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ اس کا کتنا مجھے اکانومیکل تو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک کسٹم جو ہے کم از کم وہ یو این کے لسٹ میں آ گیا. تو ہو سکتا ہے ان فیوچر اور بھی چیزیں یو این کے لسٹ میں آئیں گے. ایک چیز تو ایک انیشیٹو تو ہو گیا نا. میں تو چاہتی ہوں کہ پورے کیلاش میں یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں لے کے آئے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا کم از کم اور بھی پروٹیکشن ملے. صحیح. جی ہاں. اور کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ علی آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. میں ریڈی ہوں. ہاں کافی میرے خیال سے 1 گھنٹے سے زیادہ طویل ہم نے گفتگو کی، ہو سکتا ہے بالکل. تھینک یو علی، تھینک یو سو مچ. چلیں آپ کا بے حد شکریہ. اور آخر میں جتنے بھی دیکھنے والے ان کو کچھ پیغام دیجیے گا جو کیلاش آنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں.
अच्छा, थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सारे जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी कोई बात अगर बुरी लगी है, कोई ऐसी बात है जो दिल को किसी को लगी है, दिल आज़ारी हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी ये कि कोई कैलाश आना चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़ के आइए। कैलाश भी आप लोगों की बहन भाई है, आप लोगों की अपनी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का फ़ख्र है वो भी। तो एक दफ़ा कैलाश आने से पहले ज़रूर सोचिए कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों की कदर करेंगे अगर आप कदर करेंगे तो पढ़ अच्छा, एक के बात मुझे आइएगा याद आ कल हाँ जी जी। एक बात, अगर कैलाश हुआ तो काफिरिस्तान किधर है? वो बहुत पहले था वो, उस अमीर अब्दुलरहमान के दौर में गुम हो गया वो। बस ये चीज बड़ा लोगों को तंग करता है यार। मेरे साथ एक दोस्त है अली इजाज, उधर लाहौर के वो, तो वो आया था तो उससे किसी ने पूछा था यार ये हम कैलाश तो आ गए तो काफिरिस्तान की तरह, तो ये कैलाश ही काफिरिस्तान है, उसको लोग पुराने जमाने में काफिरिस्तान कहते थे। तो बस ये एक ही जगह है। बेहद शुक्रिया, बिल्कुल आपने हमें वक्त दिया। और जितने भी दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूंगा कि बहुत सारा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान आता है तो उसकी एक वजह कैलाश है, कैलाश कल्चर है और वहाँ का जो हेरिटेज है, तो इनकी कदर कीजिए। और वहाँ विजिट करने से पहले कैलाश हिस्ट्री, कैलाश कल्चर को आप जरूर पढ़ लीजिए। यकीनन आप वहां जाके लोगों से मिल सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, उस कल्चर को करीब से देख सकते हैं। बस ये है कि इनकी रिचुअल्स और उनकी इबादत में अमल दखल, या फिर ये है कि उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। थैंक यू तो अली। आपका बेहद शुक्रिया सैयदुल कैलाश, आपने वक्त दिया। थैंक यू सबको, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शब बखैर। थैंक यू। सब खैर।